Hello students. So today in this video we are going to be having one of the very important concepts of class 10 physics, and that is what dear NCERT solutions, isn't it? So what does that exactly meaning of the NCERT solutions? Students, as you are very much aware about that, in any competitive type of examinations they are going to be asked the questions, so they are just taking the reference of the NCERT questions only. Please remember this, isn't it? So whatever the questions which are having in the NCERT book, so then it is our responsibility to get it solved, and वहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं ना। जब हम सवाल बनाते हैं तो उसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, अगर उसके सॉल्यूशंस आ रहे तो वो सवाल हम समझ पा रहे या नहीं पा रहे, इसके बारे में भी हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ जानना बहुत ज़रूरी है। So whatever the questions which are given in your NCERT textbook, today we are going to have the entire solutions of this all these questions in this video, isn't it? So let's get started here. So first of all, what I am going to consider is that from this NCERT solutions we will consider one topic, that is what called as the इलेक्ट्रिसिटी, है ना बच्चों, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी की जो भी एक्सरसाइजेस है, दैट एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, करेक्ट, because a very important type of it's very important type of the questions are there, and we are supposed to get the solutions of each and every question. That is your responsibility as well as my responsibility, isn't it dear? So then today in this video we will discuss all these type of the questions. We are going to get the solutions of the NCERT exercise, and I have chosen one topic today, that is called the electricity. Let's get started now. What is the first question? The first question is a piece of paper of resistance R is cut into 5 equal parts. How many parts dear? 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of the combination is R dash, then the ratio R by R dash is correct. Then find the ratio R by R dash is. Actually it is a one MCQ type of the question, so I will mentioning here that what are the options were given. Option A is 1 upon 25, option B is 1 upon 5, option C is 5, and option D is what dear? That is 25. Correct. So this is one MCQ type of the question. This is the example number 1 of the NCERT, that is what the from the electricity, isn't it? So let's have the solution. तो अब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे हम इसका? बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है बच्चों, आप बस यहाँ पर देख लो कि मैं सॉल्व कैसे कह रहा हूँ, है ना, सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, बस आपको उसको देखना है। नाउ देयर इज वन वायर, ओके बेटा, देयर इज वन वायर विच हैज रेजिस्टेंस R, करेक्ट. देन दिस वायर गेट्स कट इन 5 इक्वल पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट्स? 5 इक्वल पार्ट्स. अब बच्चों ये वायर अगर 5 इक्वल पार्ट्स में अगर कट कर दिया गया तो इसका रेजिस्टेंस कितना बना? हाँ एग्जैक्टली R डिवाइडेड बाय 5. कितना बना इसका रेजिस्टेंस? R डिवाइडेड बाय 5 रेजिस्टेंस बना. नाउ दिस रेजिस्टेंसेस, ऑल दिस 5 पार्ट्स ऑफ दिस वायर्स गेट्स कनेक्टेड इन अ पैरेलल. सो लाइक दैट, दिस इज द वन. नाउ अनदर वायर इज कनेक्टेड. दिस इज व्हाट द सेकंड वायर, दिस इज व्हाट द थर्ड वायर, है ना बच्चों. देन दिस इज व्हाट द फोर्थ वायर, और एक वायर में क्या कर लेता हूँ, ऊपर यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, है ना. दिस इज व्हाट द, सो दिस आर द 5 वायर्स आर कनेक्टेड. अब हर एक वायर की जो रेजिस्टेंस है वो कितना है बच्चों? R by 5, R by 5, R by 5, एंड हाउ मच डियर? R by 5. अब हमें क्या निकालना है? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. पैरेलल में कनेक्ट किया है तो यूज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. तो कैसे यूज करें? दैट 1 डिवाइडेड बाय RP, 1 डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 प्लस बच्चों 1 अपॉन R5, है ना. वैल्यूज पुट करो. अब 1 डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू कितना आ गया? दैट 1 डिवाइडेड बाय R बाय 5, मतलब मैं इसको कैसे लिख दूँ अब? 5 बाय R. शैल आई राइट इट डाउन? यस. 5 बाय R प्लस 5 बाय R प्लस 5 बाय R प्लस 5 बाय R प्लस 5 बाय R. अब ये बोल रहे हो कि सर 5 बाय R कैसे लिख रहे हो? क्योंकि बच्चों आपको पता है 1 R बाय 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 बाय R, और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? सेम है, तो इसलिए बना. सो 1 डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू दैट इज 25 डिवाइडेड बाय R, विच मीन्स दैट RP इज इक्वल टू कितना बना बच्चों? दैट इज व्हाट? R डिवाइडेड बाय 25. लेकिन ये जो RP है ना, ये RP हमें प्रॉब्लम में क्या बताया गया है? R. सो व्हाट शुड आई डू नाउ?
दैट इज Rp इज इक्वल टू व्हाट, R डैश. सो देन R डैश इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 25. 25 को इधर ले लेता हूँ और R डैश को उधर ले लेता हूँ. क्यों, हमें निकालना क्या है, R डिवाइडेड बाय R डैश की वैल्यू निकालनी है. करेक्ट. सो देन R डिवाइडेड बाय R dash is equals to 25. So this will be your answer. So which option is right, बच्चों? That is option D is what? Right. Clear? Hope you are getting what exactly I just wanted to be delivered over here. So whenever such type of the questions are there, you are supposed to go with the solution. What exactly and what type of the solutions they are asking and how to get the problem done, isn't it? Within short period of time. तो आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा इस समय इस टाइप की प्रॉब्लम्स में. ठीक है बच्चों, तो चलो हम सेकंड प्रॉब्लम्स की ओर चलते हैं. व्हाट द सेकंड प्रॉब्लम? द सेकंड प्रॉब्लम इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डू नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट. तो इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं. एग्जांपल 2 में सॉल्व कर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से. एक है I²R, ऑप्शन बी है बच्चों IR², ऑप्शन सी है दैट इज VI, और ऑप्शन डी है that is what V²R, isn't it? So which of the following is not available, मतलब कि which of the following is not a relation of the power, ऐसे बताया गया है. चलो देखते हैं. अब हमें तो पावर का फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू VI, ये भी सही है ना. P इज इक्वल टू I²R, ये भी सही है, और P इज इक्वल टू V²R, ये भी सही है. सो ऑप्शन विच इज रॉन्ग. सो दिस इज व्हाट योर आंसर. करेक्ट. IR² ऐसा कोई भी रिलेशन हमारा बनता है क्या कहीं पर बच्चों? नहीं बनता है. सो व्हाट इज द आंसर नाउ? IR² इज नॉट अ रिलेशन ऑफ अ पावर. करेक्ट. होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड. क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वैट, देन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट. द पावर कंज्यूम्ड विल बी. यहां पर फिर से हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो पावर कंज्यूम क्या हो गया, चलो देखते हैं. ऑप्शन ए बताया गया बच्चों कितना है, 100 वैट. ऑप्शन बी है 75 वैट. ऑप्शन सी है 50 वैट. ऑप्शन डी है दैट इज 25 वैट, है ना. ये 4 ऑप्शन है हमारे पास. तो उन्होंने दिया व्हाट डेटा वी आर हैविंग दैट. Let us write it down the given first of all, isn't it beta? So P1 is given, that is how much, near about I think how much P1 is given, that is 100 watt, correct. And V1 is given 220 volt, right. और हमें दिया क्या है नेक्स्ट, V2 is given, that is 110 volt. हमें निकालना है क्या बच्चों, P2 निकालना है हमें, that's it, correct. So there are 2 cases are there. Now what should we do now? From this calculate I using the power relation, that is P is equals to what, VI, right. That is P1 is equals to what, V1, and I is common obviously. तो अब क्या होगा, हम P1 कितना है बच्चों, that is 100 is equals to what, 220 into what, I. तो I is equals to क्या बना आपका 100 divided by 220, right. 0 0 cancel, 2 5 and this is what 11. मतलब कितना आंसर आया, 5/11 एम्पियर. Now take this 5/11 ampere and substitute here, so to get the P2 value, करेक्ट बच्चों. अब यहाँ से कैसे निकालेंगे हम, therefore P2 is equals to V2 into what, I. So P2 is equals to V2 कितना बच्चों 110 into I कितना है हमारा 5/11, right. So 11 1 सा 11. So what is the answer now, that is P2 is equals to कितना है हमारा, हाँ 50 watt, राइट. दिस विल बी योर आंसर, है ना. मतलब कितना सीधा सा प्रॉब्लम है, आसान है, बस आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है. आपको जैसे सॉल्यूशन मिला, बात खत्म हो गई बच्चों, वहां पर दिन धा करना है आपको बस, राइट. सो दीज आर व्हाट द सम ऑफ द एग्जांपल्स इट इज टू बी कॉल्ड एज. ओके बेटा, चलो अब हम थर्ड एग्जांपल, दिस इज द थर्ड एग्जांपल, करेक्ट. So fourth example, what will be the example number 4 and how to get the solution of that example number 4, right बच्चों. तो example 4 तो बहुत ही simple है. 2 conducting wires of the same material and of equal lengths and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel
combinations would be, isn't it? So then यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 फिर से ऑप्शन दिए गए हमारे लिए, क्या ऑप्शन है? 1s2, Ba2s1, ऑप्शन सी 1s4 एंड ऑप्शन डी है 4s1। करेक्ट? रिकॉर्ड व्हाट आई एम सेइंग, इट्स वेरी सिंपल। कोई रेजिस्टेंस है, करेक्ट, पहले उसको किस में कनेक्ट कर दिया गया? सीरीज में जब कनेक्ट करते तो उसकी हीट क्या होगी, और जब पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद तब उसकी हीट क्या होगी? दिस इज अ क्वेश्चन। Now for that purpose, to get the solution of this, बच्चों, this is a very important type of the questions, okay? It's very important. Now to solve such type of the questions, what we are supposed to do it is that, as we know very well, the formula of the heat according to the Joule heating effect, H is equals to what beta? I square RT। तो पहले हम क्या करते हैं कि there is one wire of resistance R. Let assume, let resistance is capital R. Let the resistance is capital R। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों? पहले उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, है ना? सीरीज में कनेक्ट करने क्योंकि 2 वायर्स आर देयर। सो देन अब इसको कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि लेट अस सपोज दैट इज इन सीरीज, राइट, एंड दूसरा क्या होगा बच्चों? इन पैरेलल। तो पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो इसका। तो सीरीज में क्या होगा? आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस आर, दैट इज R1 एंड R2 बोथ आर R, इजंट इट? सो R प्लस आर कितना हुआ? ये आर एस इज इक्वल टू 2R हुआ। अब पैरेलल में कितना होगा? 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। तो इसका मतलब कि 1/RP इज इक्वल टू कितना बना बच्चों? दैट इज व्हाट? 2/R, है ना? और RP इज इक्वल टू बना R/2। करेक्ट? तो सीरीज में रेजिस्टेंस 2R है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना है? RP इज इक्वल टू R/2। अब हमें पता है कि सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है। नाउ द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। अब फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप? क्या फॉर्मूला यूज करोगे? सो ऑब्वियसली दैट इज व्हाट? HS इन सीरीज, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? V² T डिवाइडेड बाय व्हाट बच्चों? RS। और यहां पर क्या होगा? HP इज इक्वल टू V² T डिवाइडेड बाय व्हाट? RP। हमें रेशियो किसका निकालना है? व्हाट वी आर सपोज टू बी फाइंड इट आउट? दैट HS डिवाइडेड बाय HP व्हेन हीट रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन व्हाट बेटा? पैरेलल। जब ये कॉम्बिनेशंस होता है तब का हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। अब निकालते हैं ना, क्या दिक्कत है ना? कोई रोक रहा है क्या? कोई कायनात आपको आकर रोक रही है क्या? कोई नहीं रोक रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? निकाल देना बाबा, है ना? चलो निकालते हैं। क्या होगा? रेशियो निकाल लेते हैं। चलो ठीक है। देयरफॉर HS डिवाइडेड बाय व्हाट? HP इज इक्वल टू HS इज व्हाट बेटा? V² T डिवाइडेड बाय कितना RS है इसका? 2R into HP will be like that, RP will in the numerator and V² T will be in the denominator। पहले मैं यहाँ पर RS ले लेता हूँ तो आपको आसान होगा समझने के लिए। ठीक है, अब वैल्यूज रख दो। HS डिवाइडेड बाय HP है ना, V² T डिवाइडेड बाय RS कितना आएगा बच्चों? 2R है सर, और RP कितना है बच्चों? R/2 है सर, और ये अपना क्या बना? V² T डिगणे हो, R डिगणे हो। अब बचा गया HS डिवाइडेड बाय HP इज इक्वल टू, कम ऑन बच्चों, 1 डिवाइडेड बाय 2 into 2 R। सो दिस इज योर आंसर विच कैन बी रिटन एज देयरफॉर HS as HP is equals to 1 as 4। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऊपर वाला? ऑप्शन सी विल बी राइट। करेक्ट, क्योंकि हमें पता है हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टुवर्ड द रेजिस्टेंस। सो देन एज पर दिस इक्वेशंस वी आर हैविंग दिस फॉर्मूला एंड हमें क्या मिला? इसका आंसर जो मिला है वो कितना मिला बच्चों? 1 as 4। होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चों अगर आपको फिजिक्स के सवाल बनाने हैं ना तो आपको कंसेप्ट समझ कर लेना पड़ेगा, और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई ऑप्शंस नहीं है दूसरा, आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। तभी आपको न्यूमेरिकल, तभी आपको कंसेप्ट, तभी आपको फॉर्मूलेज डिराइव करना, याद करना, किसी सवाल का सॉल्यूशन बनाना पॉसिबल होगा, है ना बच्चों? तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? चलो हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, NCERT सॉल्यूशंस, जो कि आपको अच्छे नंबर देने की बिल्कुल मैं प्रयास यहां से कर रहा हूं। पता नहीं अब कितने बच्चे इसको देख पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे
और अपने नंबर्स बढ़ा पाएंगे, है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5. व्हाट इज एग्जाम्पल नाउ? How is the voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between the 2 points? बच्चों इसका जवाब मुझे नहीं लगता है मैं देने की जरूरत है, that you can be, isn't it? So then this is the example number 5. How do we connect the potential voltmeter to measure the potential difference? How? हाँ, in parallel, है ना, in parallel with the, come on बच्चों, किससे? रजिस्टर. करेक्ट. मतलब कैसे कनेक्ट करोगे आप? ऐसे, अगर ये रजिस्टर है तो इसके अक्रॉस में आप क्या करोगे बच्चों? वोल्टमीटर कनेक्ट करोगे, लाइक दैट, इजंट इट? अगर ये आर है और ये क्या होगा? ये प्लस और माइनस जो भी होगा बाकी के सर्किट में, लेकिन आपको वोल्टमीटर ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव सीन दैट वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल विद द रेजिस्टेंस, है ना. दिस इज व्हाट, राइट? सो वेरी सिंपल सर. क्या नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट? A copper wire has a diameter 0.5 mm and a resistivity of 1.6 into 10 to the power of minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance charge if, how much does the resistance change if the diameter is doubled? This is the question. अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस है, थोड़े से आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. फर्स्ट ऑफ ऑल द मंत्र ऑफ टू गेट द सॉल्यूशन इज द गिवन डेटा. करेक्ट. तो दिया हुआ है क्या हमें? डायमीटर दिया हुआ है. सो देन डी इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों? 0.5 mm. इसको लिखो 0.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 मीटर. करेक्ट. आपको रजिस्टिविटी दी गई है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8 ओहम मीटर, राइट बच्चों. देन आपको रेजिस्टेंस दिया गया है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 10 ओहम. आपको पहले निकालना है लेंथ. दिस इज द फर्स्ट ए. नाउ इन सेकंड केस, व्हेन आर गेट्स डबल, सॉरी, दैट इज इफ डायमीटर गेट्स डबल, so at that time what will be the resistance? This is the question. करेक्ट बच्चों. तो पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन ए सॉल्व करेंगे, हम लेंथ निकालेंगे. अब लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा आपको? सर हमें फॉर्मूला पता है. क्या है फॉर्मूला? आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए. बच्चों निकालना क्या है? एल. तो एल के टर्म में फॉर्मूला लिखो आप. तो एल इज इक्वल टू क्या होगा? आर ए डिवाइडेड बाय रो होगा, है ना. करेक्ट. अब यहां पर आर कितना हुआ है? लेट इट बी. फर्स्ट ऑफ ऑल अब आर है, ये है, इसको मैं दूसरे एक तरीके में लिखूंगा. एरिया हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि दिया है डायमीटर. कैसे निकालोगे? दैट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट बच्चों? रो. क्या हमारे पास आर है? ना. क्या हमारे पास पाई है? क्या हमारे पास आर है? क्या हमारे पास रो है. बट आर कैसे निकालोगे आप? डी से निकाल सकते हो. तो कैसे निकालेंगे आर हम बच्चों? यहां पर लिख देता हूं मैं, आर इज इक्वल टू व्हाट? डी बाई 2, दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3. तो आर कितना आएगा बच्चों? 0.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 मीटर, है ना. तो आर की वैल्यू मिली. अब आर यहां पर रख दो आप. तो एल इज इक्वल टू कितना आएगा इसका? कम ऑन, दैट इज 10 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 0.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 होल स्क्वायर. स्क्वायर करना ना बोलना आप, नहीं तो गया फिर सब, है ना. डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8. कितना आ गया बच्चों? 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8. मैं इसको थोड़ा और ए कर देता हूं. एल इज इक्वल टू दैट इज 31.4, 10 इंटू 3.14 आई कैन डू इट, इंटू दैट इज 25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5 होल स्क्वायर. मैंने थोड़ा सा इसको ना क्या किया है, पावर में लिख दिया ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा और आसान हो जाए. 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8. जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे 31.4 इंटू 25 स्क्वायर कितना आएगा? बताओ. हाँ, टेबल याद किया है नहीं किया है? सर वो तो हमने बहुत पहले किया है, आप आज पूछ रहे हो. 625 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 बनाए, ठीक है ना. और ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8. ये 8 कैंसल. अभी क्या बचा? इतना आंसर बचा बच्चों हमारे पास. दैट विल बी व्हाट? एल इज इक्वल टू 31.4 इंटू 625 इंटू 10 टू द पावर ऑफ व्हाट? माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1.6. बच्चों अगर आप इसका कैलकुलेशंस कर देते हो ना पूरा,
तो इसका कैलकुलेशंस आपको आएगा दैट L विल बी आई थिंक 12273 इंटू 10 टू द पावर ऑफ व्हाट -2, करेक्ट। अब ये -2 क्या होगा, मीटर में होगा, ये -2 है मतलब 12, तो L आएगा आपका 122.73 मीटर। तो अप्रोक्सीमेटली आप इस L को लिख सकते हो हाउ मच, 122 मीटर। मतलब जो लेंथ होगी आपकी, वो लेंथ कितनी होगी, 122 मीटर होगी। कितनी होगी बच्चों, 122 मीटर, दिस विल बी द लेंथ। अब लेकिन ऐसा नहीं है ना, हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म हुआ है क्या ना, वो कह रहे हैं बाबा कि अगर उसका डायमीटर डबल हो गया तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका लेंथ को कितनी होगी, लेंथ विल बी द सेम, है ना। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे बच्चों, फॉर्मूला में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना, चलो बनाते हैं अब इसको। कितना आएगा ये, दैट प्रॉब्लम बी, दैट R इज इक्वल टू वॉट, रो L बाय A। सो R इज इक्वल टू, है ना, रो कितना बना, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 इंटू लेंथ कितनी हुई बच्चों 122, और अपना पाई R स्क्वेयर, डायमीटर डबल हुआ, इसका मतलब बच्चों यहाँ पर डायमीटर कितना हुआ, 0.5 से डबल कितना हुआ, 1 mm हुआ, है ना। तो मतलब 0.5 mm हमारी क्या हुई यहाँ पर, रेडियस हुई 0.5 mm, क्योंकि रेडियस कितनी होती है, d/2 होती है ना, तो 0.5 mm बनी हो। तो यहाँ पर ये वैल्यू लग देते हैं हम, दैट R इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8, 10 है ये, 16 नहीं है, इंटू वर्ड बच्चों 122 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू R की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 होल ब्रैकेट स्क्वायर, करेक्ट। जब आप इसको सॉल्व करोगे R इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 122 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 0.5 स्क्वायर कितना आएगा, अगर आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर 5 ले लो तो यहाँ पर कितना होगा, -4 होगा। तो मतलब ये कितना बना बच्चों 25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8, है ना, 4 टू जा 8, ये 8 क्या हुआ बच्चों, कैंसिल हुआ। अब जब आप इसका कैलकुलेशंस करोगे, इसका कैलकुलेशंस करने के बाद कितना आएगा आंसर, ये आपको, ये आंसर देगा आपको 1.6, कितना होगा आंसर 1.6 इंटू व्हाट, हाँ 122 डिवाइडेड बाय कितना बच्चों 3.14, राइट, डिवाइडेड बाय कितना होगा ये 25, मतलब आपका आंसर आया कितना बच्चों 2.48। तो रेजिस्टेंस कितना होगा आपका 2.48 ओहम, कितना होगा रेजिस्टेंस 2.48 ओहम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। बच्चों जब भी लगता है ना आपको कि इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है, तो ये बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से कैलकुलेशन से उतनी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस इज अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट है ना। तो चलो अब निकलते हम दूसरे प्रॉब्लम की ओर, दैट विल बी द प्रॉब्लम नंबर 6। क्या होगा 6 होगा, सर IPL आ रहा है, IPL में हम क्या करेंगे, अब सर 6 रन्स बनाएंगे, आप बनाओगे हम बनाएंगे, नहीं सर कौन बनाएगा, टीम बनाएगी सर, तो बनाने दो ना, हम इधर 6 रन बनाते। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम नंबर 7। व्हाट इज द प्रॉब्लम नंबर 7 इज दैट the values of a current I flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistors are given below। बच्चों यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दिया गया है that I is given in terms of the ampere and the readings are 0.5, then 1.0, then 2.0, then 3.0 and 4.0, राइट। और यहाँ पर V भी दिया गया है, किसमें, वोल्ट में दिया हुआ है, कितना है 1.6, 3.4, देन 6.7, देन 10.2, देन 13 कितना होगा 2 होगा। द क्वेश्चन इज दैट प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। अब कैसे निकालेंगे सर इसको, बहुत ही सिंपल है बच्चों, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ डालना पड़ेगा। ग्राफ डालने के लिए आप जो V है एक अप्रोक्सीमेट ले सकते हो, उसके लिए मैं यहाँ पर सॉल्यूशंस आपको दिखाई दे, आई एम जस्ट टेलिंग यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ओके बच्चों। सो लेट दिस इज व्हाट द ग्राफ बच्चों, करेक्ट। सो हाउ मेनी रीडिंग्स आर देयर 0.5, करेक्ट। सो अब हमें तो पता है कि I is taken along which axis, ऑब्वियसली, है ना, I is taken along
अब कहाँ पर लेंगे, I कहाँ पर लोगे और V कहाँ पर लोगे, हमें क्या निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता है, कैसे निकालोगे रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, R, और R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय I होता है ना। सो वी आर गोइंग टू बी टेक द V टू दिस साइड एंड I टू बी दिस साइड। तो अब इक्वेशंस क्या बनेगा हम देख लेते हैं, चलो ठीक है। करेक्ट, इक्वेशंस क्या होता है देख लेते हैं। अब नहीं ना, चलो कुछ भी, कोई बात नहीं है, हम पहले क्या करेंगे कि दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, I हम क्या कर लेते हैं, वी विल टेक टू दिस साइड एंड V विल टेक टू दिस साइड, ठीक है। अभी 1.6 है, मैं एक स्केल ले लेता हूँ, 2 4 6 8, हाँ, उसके बाद में 10, कम ऑन क्या होगा, उसके बाद में 12 और ये बच्चा बना 14 है ना। और यहाँ पर चलो लेता मैं 0.5, ये होगा 1, ये होगा 1.5 और ये होगा, लेट अस सपोज वी विल गो फॉर डायरेक्टली, हम क्या करते हैं, ठीक है ना, 0.5, उसके बाद में होगा ये कितना 1 और ये होगा 1.5, देन होगा 2, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ये, होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, 2, देन 2.5, इट इज़ 3.5 और ये बना बच्चों क्या, लिटिल बिट 4 है ना, ये बना 4 की वैल्यू। अब 1.6 मतलब यहाँ पर आएगा, ये 0.5 यहाँ पर बना कहीं ना कहीं, तो ये यहाँ पर आएगा है ना। उसके बाद में 3.4 मतलब यहाँ पर 3.4 के लिए कितना बच्चों 1 है, तो ये रीडिंग्स यहाँ पर आ गई, आपको ऐसे पॉइंट्स डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में 6.7 कहीं ना कहीं तो यहाँ पर आ गया, करेक्ट, तो 6.7 के लिए कितना बच्चों 2 है, मतलब ये वैल्यू यहाँ पर आ गई ऐसे लाइक दैट है ना। उसके बाद में 10.2 के मतलब 10.2 कहीं ना कहीं यहाँ आ गया, 10.2 के लिए कितनी वैल्यूज है बच्चों, 2.5 से लेकर, सॉरी ये बनी आपकी 3, इसके बाद में बनी 3.5 और ऊपर बनेगी आपकी 4 है ना। तो ऐसे रीडिंग्स आएगी आपको, 10.2 के लिए कितनी बनी आपकी 3 रीडिंग्स बनी लाइक दैट, दिस इज व्हाट 1 पॉइंट। और बाद में 13.2 के लिए मतलब 13.2 आपका कहीं ना कहीं तो यहाँ आएगा, वो हो गया आपकी कहीं ना कहीं, तो लेट अस सपोज दिस इज व्हाट द वैल्यू, राइट बच्चों ये। और इसको आपको क्या करना है, ये भी आपको रीडिंग्स ऐसे पॉइंट्स ज्वाइन करना है, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट द ग्राफ, अगर आप एक्चुअल ग्राफ पर बनाओगे ना सो यू विल गेट द आंसर। ये थोड़ा सा रफ है इसलिए आपको ये ऐसे बन रहा है ना। अब हमें क्या करना है, ग्राफ तो बना यार, आपको तो पता है कि स्केल क्या है वगैरह, अब हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों कि 2 पॉइंट्स लेंगे, मानकर चलो ये 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिया, करेक्ट। अब इसका मैं क्या करूंगा कि स्लोप निकालूंगा। अब स्लोप क्या होता है पता है आपको, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये आपका y2 हो गया, ये आपका x2 हो गया है ना। तो चलो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों, x2 माइनस x1 है ना। अब ये y2 कितना है 3 है, y1 कितना है, ये आपका y1 है ना। तो कौन सी रीडिंग के लिए मानकर चलो कि ये मैंने 10.2 लिया है और दूसरा 10.2 और 3.4 है ना। 3.4 के लिए कितना बच्चों, ये 3 माइनस 1। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये क्या है x2 कितना है आपका, दैट इज 10.2 है, और माइनस ये कितना बनता है, ये बना आपका कितना बच्चों 3.4 बना, करेक्ट। तो आंसर कितना है, अब ये स्लोप कितना है 3 माइनस 1 2 और डिवाइड बाय 10.2 माइनस 3.4 कितना है 6.8 आ गया है ना। कितना आ गया 6.8 आ गया अगर आप देख रहे हो वहां पर। लेकिन ये क्या है I बाय वी है, लेकिन हमारा R क्या होता है V बाय आई, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू V बाय आई। तो ये आपका क्या है बच्चों V है और 6.8 और ये क्या है आपका 2 है, तो कितना आंसर बना 3.4। दिस विल बी योर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना बना आपका 3.4 ओहम। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट। अगर आपको कई बार बहुत सारी दिक्कतें आपको करनी पड़ती है, अगर मानकर चलो कि ग्राफ प्लॉट करना है, अब आप कहो कि सर ये ग्राफ ऐसे बना, ठीक है ना, क्योंकि यार आपको भी पता है कि स्केल डालने के लिए और ऊपर लेने के लिए थोड़ा सा वहां पर इट्स ओके, डजेंट मैटर। लेकिन बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनता है और ग्राफ के ऊपर से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, राइट। दिस इज वन टाइप ऑफ द एग्जाम्पल बच्चों। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 7 फ्रॉम द NCERT टेक्स्ट बुक। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ वेरी सिंपल। बच्चों आपको कोशिश करनी चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग यू आर हैविंग, राइट बच्चों। यहां पर क्या करेंगे, अब अगर आप यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर
there is a current of 2.5 milliampere in the circuit, find the value of the resistance as the of the resistor। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 8। क्या पूछा है, गिवन लिखो ना बाबू, क्या है गिवन। हाँ, बैटरी V हाउ मच 12 वोल्ट, करेक्ट। करंट दिया हुआ है कितना है 2.5 मिली एम्पियर, कन्वर्ट करो किसमें एम्पियर में, कितना आएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 एम्पियर। निकालना क्या है रेजिस्टेंस। कैसे निकालोगे आप रेजिस्टेंस सर, दैट R इज इक्वल टू व्हाट बेटा V बाय I। V कितना है 12, I कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, है ना बच्चों। तो यहाँ का जो भी आंसर होगा तो आपका आंसर कितना बनेगा, ये 12, कम ऑन कितना होगा 12 डिवाइडेड बाय 2.5, कितना आएगा आंसर, ये 4.8 होगा कम से कम। कितना होगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 ओहम। ये -3 ऊपर जाकर क्या होगा प्लस हो गया ना, तो कितना आएगा आंसर 4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। अब 3 ओहम आप इसके ऐसे भी लिख सकते हो, हाउ मच, दैट इज R इज इक्वल टू 4.8 किलो ओहम, क्योंकि 10 टू द पावर ऑफ 3 कितना हुआ 10 टू द पावर ऑफ 3 किलो हुआ ना, तो ये बना 4.8 किलो ओम, है ना। दिस विल बी योर आंसर, दैट इज योर रेजिस्टेंस, करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर, विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों कि ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively how much current would flow through the 12 ohm resistor, है ना। अब हमें क्या करना है, उन्होंने क्या दिया है एग्जांपल नंबर 9 में, R1 दिया है 0.2 ohm, R2 दिया है 0.3 ohm, R3 दिया है 0.4 ohm, R4 दिया है 0.5 ओहम और R5 दिया है 12 ओहम, करेक्ट। अब हमें यहां पर क्या निकालना है कि करंट I थ्रू व्हाट बेटा, थ्रू 12 ओहम, है ना। लेकिन उन्हें और एक कंडीशन मेंशन की है कि सारे के सारे रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट कर दिए गए सीरीज में, है ना। तो बनाओ आंसर क्या होता है, देयरफॉर RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस कितने होंगे 1 2 3 4, हाँ ठीक है। अब RS इज इक्वल टू 0.2, 0.3, 0.4 प्लस 0.5 प्लस क्या बच्चों 12। तो RS कितना बनता है देख लेते हैं, 2 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, है ना। 9 प्लस 5 14 प्लस 12, 14 मतलब ऐसे नहीं होता ना यार, 2 3 5 5 4 9 and 1.4 plus 12 that equals to 13.4, right? So RS कितना बना, that is effective resistance in series 13.4 ओम। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या निकालना है पता है, करंट निकालना है किसके थ्रू 12 ओम। लेकिन हमें पता है कि जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिए गए होंगे तो उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस होगा, सॉरी करंट होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। देन V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू बच्चों V बाय R। I अब V कितना दिया हुआ है हमें पता है V की जो वैल्यू दी गई है हमें बच्चों, वो V की वैल्यू कितनी है 12 ओम है, सॉरी 12 वोल्ट है, करेक्ट 12 वोल्ट है। अब 12 वोल्ट है तो ये बना अपना 12 और R कितना बना आया बच्चा हमारा 13.4 आया, कितना आया 13.4। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशंस करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय कितना आता है 13.4, जो भी आंसर बना बच्चों कितना होगा आया, दैट इज 0.89 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली होगा आपका 0.9, है ना। सो दिस विल बी योर आंसर, isn't it? So students, we have seen 9 examples in this part. The next part will go for the 10th question. That's it. Thank you so much.